Hi everyone, welcome to the Major Ragers podcast series with Bharat Sethi. I'm a serial entrepreneur, fitness enthusiast, but most importantly a curious learner. I started my entrepreneurial journey at the age of 16 and incorporated my first venture, Poster Gully, at age 21. I was very fortunate to have my first exit at the age of 25-26. Uske baad I started another venture which didn't work out that very well. In 2018, I incorporated the company that has the brand Rage Coffee, which is one of the fastest growing FMCG businesses in the country today. There's a lot of entrepreneurial energy and I feel I can contribute giving back to the ecosystem. How am I able to add value and have significant impact in their lives? I think वही मेरा mission है अभी with Major Ragers podcast. So कोई 40,000 feet वाला ज्ञान नहीं देना चाहता मैं, but सीधी बात with real life fundas. This podcast will be available on YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music. अगर आपको सुनना है तो ढूंढ लोगे आप basically. Come to Major Ragers. The restaurant business is one of the toughest businesses to be in. Successful rate not even. कुछ भी कर दो आप, कुछ कमी तो रह ही जाती है. सबसे पहली बात, how did you enter? जब हॉस्कास विलेज बहुत ज़्यादा चलता था. Hoskas Village is a classic learning of what not to do. So one day we were talking about a restaurant chain with Virat Kohli. He knew कि हम already करते हैं. We are good at it. But चीकू को जानते कैसे थे? We used to play cricket together. क्या विराट का favorite कौन सा है dish? Favorite. Whenever you go to One8 Commune, it's always packed. First of all, we've been lucky. Second, Virat Kohli is there for sure. Third, I think if I want to take a name here, जो मेरे को मेरा competitor लगता है. Epita आपको after all % के आसपास तो % is super. In our industry, for our kind of setup, is the most important thing. For just celebrities name, that person would come once or maybe twice. Then Cloud Kitchens के जो margins पे कौन सी क्लाउड किचन सक्सेसफुल चल रही है पहले तो आप ये बताओ. मैं वही पूछ रहा हूँ. कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसका रेस्टोरेंट चेन उस लेवल पे वर्क करा है जिस लेवल पे विराट का करा है. गिव मी वन नेम. जो भी कोई दिल्ली एनसीआर आता है उसको One8 Commune जरूर जाना है. हमारा थोड़ा बॉसमैन भी तो स्ट्रांग है. वर्तिक, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अरे दिस. नो प्रॉब्लम यार, एनी टाइम. यार तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ One8 Commune. थैंक यू सो एंड मच. मेरे को याद है जब एरो सिटी में खोला था पहले सबसे फर्स्ट आउटलेट. आई थिंक मैं वहाँ पे फर्स्ट वीक में गया था बिकॉज had somebody working in that 2019 में. एंड वो पहले वीक में मैं गया था ना. आई हैड दैट डिम्सम्स थे यार, गार्लिक डिम्सम्स, मशरूम वो खाए थे. एंड देयर वाज अनदर आई थिंक स्लाइडर्स थे, चीजी स्लाइडर्स और समथिंग. मशरूम स्लाइडर या बहुत जबरदस्त थे. तो उसके बाद मैं बहुत बार गया हूँ एंड आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ द प्लेस. थैंक यू. उसके बाद One8 Commune कहीं पे भी जाने का मौका मिलता है, विच एवर सिटी आई एम, बिकॉज नाउ यू हैव मेनी आउटलेट्स. तो आई मेक इट अ पॉइंट टू गो देयर आल्सो बिकॉज ऑफ आवर कॉमन कनेक्शन. तो गुड़गांव में भी है. गुड़गांव में Close भी to your है. place. यस आई रिमेंबर वो जब ओपनिंग हुई थी एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे. M3M. वाओ, देयर वर व्हाट 1000 पीपल देयर दैट टाइम. I think M3M वाले में I think around 1500 people were there. 1500 Yeah. तो यार बहुत जबरदस्त. एंड आई एम डूइंग दिस primarily because of my own like curiosity and my love for the food and the brand you've built. इस conversation में हम बातों के बीच बहुत सारा business का ज्ञान भी ले लेंगे, but largely मेरे को यार कुछ points समझने हैं. Because in my opinion the food business, the restaurant business is one of the toughest businesses to be in. Absolutely. सबसे पहली बात, how did you enter? घुसे कैसे इस धंधे में? Yeah, to be honest, खाना शुरू से being a Punjabi, खाना शुरू से पसंद था. I used to go out and eat food and I remember back in 2012 जब हॉस्कास विलेज बहुत ज़्यादा चलता था उस टाइम पे. I used to go there, used to eat food, used to party. The thing is कि with time I got to know this is my passion, this is what I want to do. And I want to bring people under one roof. सारे लोग आएं and एक दूसरे को मिले वहाँ पे, खाना खाएं, enjoy the food, enjoy the flavors, right? So I think it's been more than 10 years
and it's a 10 passion साल now. शुरू हुए हुए तो नहीं हुए अभी. नहीं, not particularly. But इससे so One8 Commune से पहले क्या? Yeah, I've were you tried. in the industry? Yeah. I was in the industry. I've done moonshine. It was in Hoskas village. Then Moonshine. Yeah, moonshine. Yeah, येती के साथ. Yeah. उस टाइम पे और बॉम्बे में भी खोला था एक moonshine. But अच्छा. after that, somehow One8 Commune करा और things were. तो हॉस्कास विलेज में उस टाइम पे it was booming. I think. Yeah. It was crazy. It was crazy. It was actually the first organized party spot in the country. Yeah. Like at least NCR का तो पहला था. I mean, people used to hop there, right? Yeah. इधर गए उधर गए इतना culture तब था नहीं, but I think Hoskas village से वो culture आया, and then parking was an issue. Yeah. Yes, but वहाँ पे वो गुंडा राज भी तो था थोड़ा सा. but ठीक है, walk करके जाते थे, 1-1 किलोमीटर walk करते थे, अच्छा लगता था. अलग फील थी. Yeah. But मूनशाइन कितने टाइम चलाया? Moonshine चला 2013 till initial 17. 17. Yeah, 4 Wow. years. Because of fire NSE and all that, थोड़ा पूरा horse cars में थोड़ा problem हो गया because of that. Otherwise, it was doing pretty well. Doing pretty well. But I think it's a classic learning, na? Hoskas village is a classic learning of what not to do when things are going right. That's how it is in life. Now you do certain things and then you realize and you make mistakes, not purposely, and then you learn from it and then you Yeah. don't try to repeat it. That's what you can do, right? Yeah. यही कोशिश रहती है. Yeah, absolutely यार. और 4 साल एक Yeah. रेस्टोरेंट को चलाना to first of all survive for 4 years, 5 years is I think you are in the top 10% anyways. Top 5%. Over there. Moonshine was, to be honest, Moonshine in particularly Hoskas village was doing fantastic at that point of time. But कुछ गलतियां करके ही आप सीखते हो, right? नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? Absolutely. One8 Commune का कैसे? How did you get into that? One8 Commune was very interesting story, to be honest. One8 Commune, I didn't come up with this name, right? Me and my buddy Ankit Tayal, like we worked together, and one day we were talking about, because Virat is a friend, right? So one day we were talking about a restaurant chain with Virat Kohli. So I spoke to him and we went to his place and we were like, Virat को मैं चीकू बोलता हूँ, right? मैंने बोला यार चीकू एक ना restaurant, because he knew कि हम already करते हैं, we are good at it and we are 2019 है 18 नहीं back 2016. 16 okay. So he knew Moonshine and Aurobindo, Mark. But चीकू को जानते कैसे थे? We used to play cricket together. हम क्रिकेट खेलते थे लॉन्ग टाइम बैक, काफ़ी टाइम खेले. वो अच्छा खेलता था, मैं बहुत अच्छा खेलता था, शायद इसलिए वो खेल गया और मैं नहीं खेल पाया, बट ठीक है. आई स्पोक टू विराट एंड वेंट टू हिज प्लेस इन गुड़गांव. नाम कुछ और था उस टाइम, कुछ और सोच रहे थे हम करने की उसके साथ, बट ही केम अप विद दिस आइडिया दैट आई एम कमिंग अप विद दिस ब्रांड One8 एंड इफ यू वांट टू डू रेस्टोरेंट कैटेगरी, फूड F&B कैटेगरी, देन डू इट अंडर माई ब्रांड अम्ब्रेला. So that's how we came up with One8 Commune. Got it. And was it like क्या तरीका क्या था करने का? Because वो ये structure करने के लिए ऐसी deals को, ऐसे ideas को, it takes time. It takes you time. You also met him in 2016 for this idea. 16 and then 3 साल लग गए. We kept working on it and kept thinking that the kind of following Virat has, right? Okay, right fit, right mixture. Initially we were thinking to make a sports bar, but to be honest, sports bar in India historically never worked. आपने देखा होगा. It never worked. Concept नहीं है. Generic बड़ा ऐसा जैसे neutral ऐसा कुछ करना था. That's why we moved away from sports bar, and then we thought that looking at Virat's fan following, कि किस तरह सारी community को, सारे age group को we should get under one roof, and then we came up with this idea that we should have global cuisine. There are few elements, जैसे विराट की jersey है, उसका logo है. If you see, you enter the outlet, there's his jersey right over there, signature over there, few elements. Then the food he has
ही इज़ इनटू फिटनेस और उसको खाना भी बड़ा फॉर एग्जांपल देयर इज दिस सुपर फ्रूट सैलेड जो है ऐसी बात नहीं, वो बाकी खाना भी खाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिटनेस रिलेटेड या डाइट रिलेटेड खाना खाता है. मशरूम गोगली, द वन यू ट्राइड. देन वी केम अप विद दिस आइडिया एंड बड़ा ही हमने ना इसको बड़ा न्यूट्रल सा, नॉट टुवर्ड्स मैन नॉट टुवर्ड्स वुमेन, ऐसा कुछ नहीं बनाया, बड़ा न्यूट्रल सेंट्रिक ऐसा बनाया है इसको, वन8 कम्यून को, फॉर ऑल कम्युनिटीज, ऑल एज ग्रुप. कोई अर्ली डेज से 1/8 की कोई कम्यून से कोई स्टोरी याद है विद विराट के, यार कुछ ऐसा समथिंग दैट रियली काइंड ऑफ यू नो वर्कड फॉर यू इन द लॉन्ग रन, बट उस टाइम पे लगा कि यार ये एक अच्छा डिसीजन था या एक चैलेंजिंग डिसीजन था, या मे बी इट वॉज नॉट दैट क्लियर एट दैट टाइम बट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर? नहीं, चैलेंजिंग इनिशियली तो राइट मिक्स ढूंढना ही बड़ा चैलेंजिंग था, टू बी ऑनेस्ट. अब गैप ढूंढना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई सेलिब्रिटी, यू टेल मी कि कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसका रेस्टोरेंट चेन उस लेवल पे वर्क करा है, जिस लेवल पे फूड रेस्टोरेंट जिस लेवल पे विराट का करा है. जस्ट टेल मी दैट, गिव मी वन नेम. there's nobody. It's not that easy. I've done enough research about the category also. इंडिया में कॉन्सेप्ट 1/8 कम्यून ने ही पॉपुलराइज किया है. अब पता नहीं इफ somebody is, because it's not just to do with the branding, right? It's a lot to do with execution, operational excellence, you know, maintaining the consistency of Yeah, ambience all the that is time. very important. बहुत कुछ है. बहुत कुछ है. तो ये सिर्फ यू कैन, ऐसे हम बात भी कर रहे थे अभी कि यार आप किसी को अंदर ला सकते हो एक बारी कि यार कोई सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व, बट हाउ डू यू बिल्ड द रिपीट्स एंड Yeah, लॉयल्टी? to be honest, if any celebrity involved in any restaurant or any product, ठीक है, आप एक बारी तो for particularly in Virat's case in One8 Commune, आप एक बारी तो विराट करके you can come to the restaurant, right? But उसके बाद if you have to like the food, you have to give good service, you have to give good ambience, overall vibe, then you'll customer, that would keep coming back. Yeah. Otherwise, for just celebrity's name, that person would come once or maybe twice, then you won't get that loyalty, to be honest. Then you have to keep working on your food, good service. These are the things you have to, and overall vibe, I would say, in our business, because we are a restaurant bar, not just a restaurant. सबसे बड़ा सवाल वर्तिक, आई थिंक, जो किसी भी रेस्टोरेंट यू नो एंटरप्रेन्योर का होता है, या अ लॉट ऑफ पीपल ड्रीम यार कि अपना एक रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, बार हो, एवरी, आई थिंक 18, 19, 20 year old, क्या मेरा अपना रेस्टोरेंट हो. Like most of them, राइट, हमने भी किया हुआ है, सब बोलते हैं. बिल्कुल. लेकिन इट इज एन इमेंसली डिफिकल्ट बिजनेस. सर्वाइवल रेट इज बिलो 90, you know, it's I mean, below 10%. to be honest, successful rate is close to 4 or 5% only. That's Fifth year it. में तो मतलब मान के चलो 4-5%. बहुत मुश्किल है, to be honest. It's not like that. It's just that something you want to do and you can open it and you can run it. It should be your passion. You should sleep with it. You should get up with it, and you should compete with yourself. Then I want to do better and keep getting better. What I've delivered, the next project should be better than that. Only then you can do something good in this industry. Otherwise, you won't be able to survive. That's what I think. Yeah, मतलब we are talking about 8 plus 8 more, 16, and then you have plans to open 25 by FY 25. 1/8 Commune by 25, because we have other brands also, as I told you, Neuma with Karan Johar and Pin Code with Chef Kunal Kapoor. Yeah. And another one is just coming wild. So, 4 more brands under our parent company. And yes, for particularly if we are talking about 1/8 Commune, then 25 by 2025. That's what we are targeting. बट इसको वर्तिक थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि पैशन इज देयर. मान लो कि फायर इन द बेली बहुत के पास है. सबसे, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन फ्रॉम माय लेंस. आप एक बारी बताना यार कि ये हो सकता है नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन है, राइट? Very important. लोकेशन के बाद आपका सेटअप है, एम्बियंस है.
राइट, फूड है, इन तीनों चीज़ों के लिए कैपिटल है। Capital है, ये तीन capital चीज़ें, है। उसके बाद आपका अगर चीज़ चलती है उसके बाद मैनेजमेंट है, स्टाफ है। इसके अंदर एक और चीज़ है, कैपिटल है। कैपिटल कई लोगों के पास ना, व्हाट आई हैव सीन, यू हैव कैपिटल टू ओपन इट, राइट, टू हायर मैन पावर, यू नो, टू मेक अ गुड एम्बियंस, टू फाइंड अ राइट स्पॉट, रेंटल, यू कैन गिव गुड रेंटल। बट क्या होता है, एक बार कैपिटल लगाने के बाद ना लोग सोचते हैं हो गया। You need capital. Even once you have delivered it, you need deep pockets, fund to run it for another 6 months properly and consistently. क्या होता है अगर आपके पास नहीं है, for example, you don't have backing, you don't have money to run it properly, तो आपकी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है ना वो सफ़र करती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो एक बारी कस्टमर आता है उसको सेम क्वालिटी नहीं मिलती। अभी क्वालिटी अगर बाय टाइम इट गोज डाउन, देन अगर it's a problem. मान ले यार कि मेरे को 1000 स्क्वायर फीट का कोई रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, डिपेंड्स कहाँ खोलना है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को 1000 स्क्वायर फीट का कोई रेस्टोरेंट इन अ कैजुअल सेटिंग खोलना है, सीटिंग के साथ, क्या मेरे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मुझे अगर मेरे पास मान ले कि 3 महीने हैं खोलने के लिए, व्हाट शुड आई डू इन दोस 3 months टू ओपन अ रेस्टोरेंट दैट इज 800,000 स्क्वायर फीट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर यू आर टारगेटिंग। ओके, आपका ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, किस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, देन यू हैव टू फाइंड राइट काइंड ऑफ मार्केट फॉर दैट, राइट। फॉर एग्जांपल कि आप दिल्ली में खोलना चाहते हो, ठीक है, एंड योर टारगेट is somewhere according to your product, you think that you want to be in Khan market, for example. तो खान मार्केट का रेंटल आई थिंक पूरी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेंटल है, ठीक है। टू डू दैट, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दैट फॉर्मेट, आप खान मार्केट के आसपास कोई ऐसी जगह देखो जो आपको लगता है कि क्लाइंटल तो है, कस्टमर है, उनके पास भी दे हैव गुड स्पेंडिंग पावर, बट खान मार्केट से थोड़ा दूर अगर वो जगह आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ 5 kilometers, ठीक है, योर रेंटल वुड गो डाउन, ठीक है, यू गेटिंग द सेम क्लाइंटल इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, बिकॉज इफ यू गोइंग टू खान मार्केट एंड यू ट्रैवलिंग जस्ट 15 minutes अवे फ्रॉम अ बेटर रेस्टोरेंट, बेटर प्रोडक्ट, बेटर फूड क्वालिटी, तो आपका रेंटल ऑटोमेटिकली डाउन हो गया, ठीक है। आप ऑलरेडी मार्केट में बाकियों से जो आपका ब्रेक इवन हो गया वो कम हो गया। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट आई फील, एंड अगेन इफ इट सूट्स योर प्रोडक्ट, सूट्स योर क्लाइंट। प्रोडक्ट है क्या एग्जैक्टली? कैन यू डिफाइन दिस प्रोडक्ट? लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड प्लस एम्बियंस प्लस सर्विस। टू बी ऑनेस्ट, टारगेट customer target customer target, to be honest, your food priority, with food service very important. मेरे को अच्छी सर्विस चाहिए। if I'm going to a restaurant, food is good but I have to wait there for 20 minutes for each dish, then you know somehow my experience would be, you have to give overall experience, good experience, service, then your overall ambience. Depends what kind of restaurant you want to make, or if you just want to make a normal casual dining which is not very aspirational, तो आप normal भी उसको with that ambience के साथ you can go for it. But if you want to make it really, for example, high end, give that vibe, तो हर सो मुझे ये समझ आ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले अपने कस्टमर सेगमेंट को समझो, सबसे किसको टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले आप किसको टारगेट कर रहे हो, व्हाट इज योर प्राइस पॉइंट। थोड़ा और ब्रेक डाउन करेगा कस्टमर सेगमेंट को, लाइक 1-8 कम्यून किस तरह के कस्टमर को टारगेट करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, 1-8 कम्यून इज़ वेरी एस्पिरेशनल एज अ ब्रांड। ओके, तो वो एस्पिरेशनल कस्टमर को टारगेट करता है। टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू सी, अगेन आई विल कम टू विराट, ठीक है। विराट की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो सारे हर तरीके की एज ग्रुप पे, हर तरीके के कस्टमर, हर तरीके की कम्युनिटी पे है। तो यू हैव टू बी देयर, लाइक ऑन द लाइन्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इफ वांट टू टेक अ नेम हेयर, देन I would say aspirational social, not exactly social, but aspirational social. That's what I think. जो मेरे को मेरा competitor लगता है। सो
upgrading a customer to an aspirational better product. yes. लोकेशन कैसे सोचता है, मतलब हाउ डू यू, That's कुछ मेट्रिक्स हैं, कुछ चेकबॉक्स है यार कि ये चीजें होनी चाहिए? location in this industry, location is very important, especially for our format. Location is very important. What I feel, if I live in a city, I know everything about that city, right? But if I don't live in that city, then what I do is what I usually do. मैं स्काउट कैसे करता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर सिटी में जाता हूँ. I live there for 4-5 days. I stay there for 4-5 days, right? मेरे ब्रांड के अकॉर्डिंग जो मुझे मेरा कॉम्पिटिटर लगता है, मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ. मैं वहाँ की वाइब चेक करता हूँ, मैं वहाँ का खाना चेक करता हूँ, मैं वहाँ ये देखता हूँ कस्टमर किस तरीके के आ रहे हैं और वो किस पर्टिकुलर एरिया में है और क्यों वो चल रहा है. I stay there for weekdays and weekend also. Because our business, like if I say 70% is on weekends. Weekday पे भी है. It's a good footfall for us, but I'm just telling you in general. Weekends पे ज़्यादा footfall होती है, सबको पता है. Just to check. तो weekday भी देखना होता है, weekend भी देखना होता है. And after that, when I analyze everything, for example, if I'm not in Delhi, I'll come to Delhi. I stay in Delhi. I check all the good restaurants in Delhi. To be honest, I go to different places: Khan Market, Aerocity, South Delhi, Gurgaon, and then I'll see उस पर्टिकुलर एरिया में वो रेस्टोरेंट्स क्यों वर्क कर रहे हैं, किस लिए वर्क कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं और वहाँ किस तरीके का क्लाइंटल आ रहा है. देन आई विल फिगर आउट अ स्पॉट एंड देन आई विल ओपन इट. बिकॉज लोकेशन इज प्रोसेस कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में? बिकॉज लोकेशन ढूंढना एक अलग बात है, लोकेशन मिलना अपनी मर्जी की. हाँ, लोकेशन कभी कभार टू बी ऑनेस्ट 2 महीने से लेकर 6 महीने भी लग जाते हैं लोकेशन मिलना. राइट काइंड ऑफ लोकेशन, नेगोशिएशंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है डेवलपर के साथ. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो यार, ये लोकेशन इज़ द, आई थिंक द प्रायोरिटी फॉर इन आर इंडस्ट्री, फॉर आर काइंड ऑफ सेटअप. आई थिंक लोकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट शुड बी बैंग ऑन. Like you also open large format stores, matlab large format restaurants, right? Recently we opened One8 Commune in Bangalore. It's I think 17 to 18,000 square feet area. It's huge. It's in Cubbon Park, close to Cubbon Park, close to UB City. We explored that spot और उसको बनने भी 1 साल लगा है पूरा. It's that bad. Coming to that, construction और जो setup पूरा रहता है, starting with the interior, like you have a design sense now कि One8 की कुछ design sense है, it will keep changing here and there. Like we have few elements which would be there, but it would keep changing according to the space. वो जगह कैसी है, वो जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज करना. एक ब्लूप्रिंट है या फिर यू आर वेरी फ्लेक्सिबल कि यार ये जगह में ये सेटअप बेटर रहेगा? नहीं, वी आर वेरी. जुहू वाला है वो एक, that's in Juhu is a bungalow, and you don't get that kind of property in India anywhere. It's very hard to get that. Kumar's bungalow. Yes, Mr. Kishore Kumar's bungalow, and iconic spot. उसकी बड़ी ना बोहो वाइब दी है. आप देखो ना उस जगह को, आप जाओ, आप गए, आप we have been there, right? We have been there. So मतलब उसकी आप वाइब, हाँ, been there together. बंटी की पार्टी में भी, बंटी की पार्टी हुई, बंटी के बर्थडे पार्टी हुई. बट टू बी ऑनेस्ट वो बड़ी आइकॉनिक जगह है और ऐसी जगह मिलना, आई थिंक इट्स, वी वर लकी टू गेट दैट स्पॉट एंड इट्स डूइंग एक्सेप्शनली वेल. व्हाट अ प्लेस यार. मतलब बॉम्बे में हूँ मैं और वहाँ ना जाऊँ तो बहुत कम होता है. आप एक्सेस देखो ना, कितना ईजी है टू कम देयर. यू कमिंग देयर, यू हैव वैले सर्विस, यू जस्ट गिविंग योर कार एंड जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट. वाइब इज समथिंग एल्स. वो वाइब भी अलग है. वाइब भी अलग है. तो यार ये लोकेशन, सेटअप, इंटीरियर्स, खर्चा कितना होता है इंटीरियर्स में यार? अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट 1,000 स्क्वायर फीट स्पेस, मेरे को एज अ, लेट्स से आई एम ओपनिंग माय फर्स्ट रेस्टोरेंट, क्या मेरे को करना चाहिए? हाउ शुड आई गो अबाउट लुकिंग फॉर अ डिजाइनर, नॉट लुकिंग, डू इट माई सेल्फ? Yeah, one thing, I think let experts do their job. That's what I believe. I think interior, you need an interior team, architect, interior, whatever. हमें architect तो इतना, to be honest, हमारे industry में नहीं चाहिए था, but interior, a good interior team, you need that for sure. Because
you can sit with them, you can give your thoughts, but end of the day, it's their vision. You can tell them that what you want, but how they see it, हम उस तरह देख ही नहीं सकते चीज़ें. करेक्ट है. हम वो विजुलाइज कर ही नहीं सकते इस तरह वो करते हैं. सो वी हैव टू ट्रस्ट देम, बट हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमारी ये एलिमेंट्स है, हमें ये चीज़ें चाहिए. एंड देन आई थिंक दिस गर्ल मीनल who has done One8 Commune in Juhu, she has done Bastin also. So she's pretty good at it. You also work with Renessa, na? Yes, Sanchit. Yeah, he's my buddy. Sanchit, yeah. Good guy. He's my childhood friend. Yeah, Sanchit has done Gurgaon One8 Commune, M3 M1. Now Fantastic work. Yeah, fantastic work. Amazing. Yeah, he's good. Shout out to you. Sanchit, if you're looking at it. And he's doing Hyderabad One8 Commune also. We're coming up there. We're opening it in Feb end, I guess. So it's very important. फूड के बारे में बात है, मतलब अभी भी आई थिंक मेरे को तो थोड़ा सा और आई वांट टू अंडरस्टैंड यार कि इंटीरियर डिजाइनर में लोग सोचते हैं कि यार खर्चा बहुत होएगा, पता नहीं क्या करता है. देखो वो बहुत सारे लोग हैं जो देखो वो वर्थ इट है. बजट नहीं होता बहुतों के पास. देखो तो बजट कैसा सोचे. देखो बजट नहीं होता, then what kind of product you making, right? It depends on that. If you particularly talking about One8 Commune, Neuma, then to be honest, we have to spend money to give that experience. Otherwise, अगर हम इंटीरियर्स उस तरीके के नहीं करेंगे, खर्चना जरूरी है. इंटीरियर बहुत जरूरी है. हमारे फॉर्मेट में ज़रूरी है. और हमारे फॉर्मेट में वी डोंट डू स्पेसेस आई थिंक लेस देन 6,000 square feet. That's our format, because we need at least 125 to between 125 to 200 covers. And this Bangalore one is 400 cover restaurant. It's like biggest One8 Commune in India so far. Wow. Now coming to the most important part of the puzzle, which is food. Yeah. सबसे I think एक अगर कोई reason है why people will keep coming back. Yes. कभी ambience, you know, service है, सब चीजें हैं. सब कुछ है. But सबसे important मेरे लिए वो है food. Food If the food is good, या एक कोई डिश मेरे को ऐसी लग जाएगी वो कहीं मिलेगी नहीं. और जो One8 के पास काफी सारी हैं, कभी उनके पास. But how do you crack food यार? सबसे बड़ा for me that is the biggest question mark. Yeah, to be honest, lucky in this area. Why? Being a Punjabi, you know our taste buds, right? But you became a vegetarian long back. Yeah. 10 like years. Me. 10 years back. तो non-veg की sampling तो बता रहा था somebody else does. Yeah. Ankit but you have a team also. Yeah. We have a but team. crack कैसे करना है food? Yeah, to be honest, there are a lot of food trials that we keep doing. हम करते रहते हैं, ठीक है. It's not that once the outlet we open it and then we stop doing it. उससे एक step पहले कि how do I decide कि मैं Indian करूँ, Pan Asian करूँ, European करूँ, I don't know, 10,000 Chinese करूँ. मेरे को सोचना कैसे चाहिए मेन्यू के बारे में? See, मेन्यू के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि हमने कैसे सोचा. To be honest, हमने ऐसे सोचा कि we do bigger spaces, right? We need more footfall, ठीक है. We do 150, 125, 150 covers or maybe 200 covers sometimes, right? So to cater all those people, you know, and doing just one cuisine, I was not too sure about it, to be honest. Okay. So that's why we have done global cuisine, multi-cuisine. We have Indian, we have Asian, we have somewhat your European. हर तरीके का खाना, right mix over there. Then we have special Virat's menu as well, if you'll see that. Well, that's my favorite. उसके अंदर super fruit salad है, उसका mushroom googly dim sum है, this barley risotto always there. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको काफ़ी पसंद है, जो वो खाता है. तो I think to target. क्या विराट का favorite कौन सा है dish? Like favorite मतलब सबसे go to उसका mushroom googly dim sum is वही उसी के बारे में बात करते हैं. Go to that the first time you tried it. Yeah. So मतलब उसका go to है. So to be honest, to cater all like mass population, mass people, like a lot of footfall in your outlet, you need to have a lot of offerings also. और वो I think global cuisine से अच्छा, I don't think so. According to me, I'm not saying कि
कोई अगर सिंगल कुजीन रेस्टोरेंट हो कि सिर्फ इंडियन हो या सिर्फ थाई हो तो वहाँ लोग नहीं आते हैं, बट व्हाट वर्क्स फॉर यू हैव टू Keep लुक doing एट दैट. that. या The So it- one eight commune knows how to fill up, the seats and the now space. now What तेरे हिसाब से क्या है वो reason why whenever you go to one eight commune, wherever I go, I only see packed. It's always packed. क्या reason हो सकता है? कोई एक या दो चीजें तो है. I think first of all, we've been lucky. First thing. Second, yes, we work hard, but we have been lucky. Second, Virat Kohli is there for sure. And third, I think the consistency. Consistency. आप बार बार जब भी आप वहाँ आओगे आपको सेम टेस्ट मिलेगा. आप किसी भी सिटी में जाओगे, if you'll come to Delhi and then you'll go to Bombay, you'll go to Hyderabad, you'll go to Bangalore and आप बोलोगे यार मैंने वहाँ ये खाया था, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल अगेन मशरूम गुगली खाया था, या मैंने ये क्या कहते हैं एवोकाडो टार्टर खाया था, फ्लैट ब्रेड खाई थी, मेरे को यहाँ पे भी यही खाना और आपको सेम टेस्ट मिल रहा है, देन यू वुड. कैसे करते हो यार SOPs मेंटेन? मतलब That's why कुछ तो होएगा. that's why you hire a big team, right? तो Budget people. plays Good there. people. Big good people, बट 4 साल पहले तो ये बजट नहीं होएगा, आज नहीं. है. तो 4 साल जब पहले फर्स्ट से सेकंड खोला था तो कैसे किया था? 4 साल पहले फिर हम ही खुद जाकर वहाँ करते रहते थे, है ना? हमें टाइम था ना तब. टू बी ऑनेस्ट 4 साल पहले 5 साल पहले अब जो टाइम नहीं है बिल्कुल भी. लाइक वी हैव अ बिग टीम एंड दे रियली वर्क हार्ड, टू बी ऑनेस्ट. सारे बहुत मेहनत करते हैं. अब जो काम वो करते हैं और हम बाकी काम करते हैं, पहले हम काम वही करते थे जो आज वो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वो आज की डेट में ट्रायल्स करते हैं, SOP सेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, शेफ़ हो गए. पहले हम शेफ़ के साथ बैठ के करा करते थे और ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट होता है, राइट. SOPs जो बनाते हो फूड के, स्पेशली किचन के SOPs जो हैं, वो हमारे कॉर्पोरेट शेफ़ हैं. सो शेफ अग्नीप is Okay. there. Yeah. He's there. He keeps working on it. Or we sit with him, we discuss things, but he's an expert, so we let him do his job. बट SOPs जो सेट करते हैं वो, और एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ओवरऑल इज अबाउट एट्रिशन. मतलब बहुत बहुत कम लोग हैं जो स्टिक करते हैं कंपनी के साथ, एक ब्रांड के साथ, एक किचन में. To be तो honest, वो कैसे डील करता है? to be honest, वो अब मैं यहाँ बैठ के ये बोलूँ कि वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते तो मैं झूठ बोलूँगा. वो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, बट यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू लिव विद इट. कैसे डील करता है? टू बी ऑनेस्ट कुछ लोग लॉयल हैं. दे आर तो विद उसके बिना अस. तो धंधा नहीं चल सकता. धंधा नहीं. कुछ लोग लॉयल हैं, बट कुछ लोग किचन नहीं में हैं. एट्रिशन कभी मान ले कि न्यू ईयर्स आ गया, दिवाली आ गई, ऐसा कोई हुआ season है, आ गया, तो ऐसा कैसे हुआ है, करते हो? मतलब ऐसा हुआ अगर है मेरे कि पास- आ गया जी न्यू ईयर आ गया, फेस्टिव क्या कहते हैं आपका फेस्टिव सीजन आ गया, ये आ गया और एकदम से योर हेड शेफ, ठीक है, या फिर एकदम से रेस्टोरेंट मैनेजर, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट किचन, देयर ऑपरेशन का भी पार्ट होता है, राइट. तो वी डू इट समहाउ. नाउ वी हैव अ बिग टीम, सो वी मैनेज इट. फॉर एग्जांपल स्टाफिंग कंपनीज के साथ काम करते हो? स्टाफिंग कंपनीज के साथ काम करते हैं, बट इन हाउस खुद की भी टीम है. एंड अनदर थिंग इज, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव मल्टीपल आउटलेट्स इन अ सिटी, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. योर मैनेजर, इफ यू हैव 3-4 मैनेजर एट पर्टिकुलर आउटलेट, तो आप वहाँ से एक उधर प्लेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर आउटलेट में. नाउ वी कैन हैंडल इट, बट टू बी ऑनेस्ट स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम. बट people who are just running one outlet, then I think it would be a bigger problem for them, bigger challenge to deal with it. Do you sell on Zomato and Swiggy? You sell, right? Yes, we do. I mean, but Too many I mean- pauses. कुछ तो नहीं, we do sell. मतलब do you want to sell on Zomato and Swiggy? I mean, we sell on Zomato and Swiggy, but the thing is, क्या होता है ना, कभी कभार वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो जाती है. फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स जोमेटो के थ्रू बुकिंग्स होती हैं, बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डिलीवरीज, तो वो यार क्या करना पड़ता है इतनी फुटफॉल में. हम जो ऑलरेडी पीपल आर देयर एट द आउटलेट, वी वांट टू गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस, कि उनका फूड डिले ना हो, उनको अच्छी सर्विस मिले, अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिले, राइट. So on the weekends, especially in the evenings after 8 p.m. or 7 p.m, तो हमें थोड़ा डिलीवरी कम ही करना पड़ता है, ध्यान उधर कम ही देना पड़ता है, to be honest. Otherwise, यार it's good. इकोनॉमिक्स समझाना एक बारी, क्योंकि अभी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल
and it's time हो गया, but अभी ज़्यादा है where everybody is dependent on these two platforms to generate business for them. I think that is more for cloud kitchen. Kitchens That's bhi- what I think. Yeah. That is more for cloud kitchen. And to be honest, of course, ये जो दो platforms हैं, it is doing pretty good for themselves. I mean, and for cloud kitchens also. I understand, but for our model in CDR for casual dining restaurants, okay, काम है, business है, but हमारा major business तो डाइन इन का ही है. एक बारी इकोनॉमिक्स समझते हैं ना, एक बारी if you have to understand a casual dining restaurant business. To be honest, हमारा कैसे चलता है, for example, if you talking about cost of goods and services, COGS कहते हैं जैसे, to be honest. Food cost होगी जो. Food cost होगी, overall cost of goods and services, to be overall, वो 30% to 35%. COGS में क्या क्या इंक्लूड करते हो? सारा आपका फूड का आ गया, फॉर एग्जांपल. Food everything ना, all the ingredient cost. All the सब कुछ, फॉर एग्जांपल. तो वो 30 to 35% होता है, टू बी ऑनेस्ट. अपना सर्विस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, वो आप 15% लगा के चलो. हाँ, ऑपरेशनल ओवरहेड्स 15%. स्टाफ सैलरीज. हाँ, 15% लगा के चलो. 15% देखो, आइडल सिनारियो तो 15% ही है. अब आप उससे ज़्यादा करते हो तो मार्जिन प्रोफाइल हिट होगी. हाँ, मार्जिन 15% वो हो गया. आपको थोड़ा सा 15% आप पकड़ के चलोगे, रेंटल हो गया, ठीक है, वो होगा ही होगा आपका. और 15% रेंटल ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है? रेंटल ज़्यादा होता है तो फिर आई मीन आपको प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल होगी. प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज क्या है ना, आप देखो, अगर 30 से 35% आपका कॉग्स हो गया, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 15% आपका सारा ऑपरेशनल, आई मीन सर्विस लाइक मैनेजमेंट और जो भी हो गया वो हो गया, 15% आपका रेंटल हो गया, और 15% आपका फॉर एग्जांपल कुछ नई चीज़ें ब्रेक रहे, मतलब कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं करते हो, उनके ऊपर हो गया, और 3-4% आई वुड से मार्केटिंग. तो देखो, एपिटा आपको आफ्टर ऑल 20% के आसपास, तो that's what I think. 18-20%, 25%, जो भी आप मैक्सिमम कर सकते हो. I don't think so. Going above 25% is possible. To be honest, it's like 25% is very hard. Super. It's very hard. किसी भी इंडस्ट्री में 25% To be honest, निकालना तो बहुत 15 से बड़ी बात है. 20% is the ideal scenario. So खर्चे यही रहते हैं. और पेबैक एक केपेक्स पे जो भी सेटअप फीस होती है उस पे. हाँ, केपेक्स कॉस्ट, टू बी ऑनेस्ट, जो लगता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, इफ इट्स डूइंग प्रीटी वेल, 18,000 स्क्वायर फीट तो बहुत ह्यूज स्पेस यार. if it's doing well, and I think 2.5 years, that's what I think. तो डू यू ऑल्सो गो आउट एंड वर्क विद इन्वेस्टर्स, जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं. Yes, we do. इन्वेस्टमेंट मॉडल. So our parent company, some outlets, I'll include all the outlets, not just One8 Commune. I'll include Neuma, Pin Code, and coming up with Wild as well. So all the outlets, somewhere we own 100% completely. Okay. But if you want to dilute in that particular outlet, particular restaurant, particular location, we don't go below 51%. So 51% is with us no matter what. 49% we dilute sometimes. बट वो लोकेशन पे के लिए, उस लोकेशन के लिए वो इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन. Why I tell you? Because, for example, our base is Delhi, right? We are from here. करेक्ट. If I want to open in Calcutta, I cannot be there regularly, Yes. right? So कुछ वहाँ पे, to be honest, a local partner would be there, and जिसका थोड़ा सा ये background हो, we look for that. It थोड़ा helpful रहता है, to be honest. And second thing is day-to-day management. We do everything. We set up our team, but still you need a person over there. It's a franchisee model. I mean joint venture. Joint venture. Got it. We stay away from franchisee. Franchising नहीं करते. Right क्यों? now it's not. ऐसा क्यों है? I mean अभी पहले करके देखें. What I think for the अभी तक किया brand, नहीं ना कोई? नहीं अभी तक कोई नहीं करा. For brands perspective, I think 1/8 में तो नहीं करा, Neuma में नहीं करा, but Pin Code हम करते हैं franchisee. Because why? There's a reason. Because it's
a restaurant. It's not a restaurant bar. It's a restaurant. You don't have to do live events over there. You don't have to make new creatives every day. You don't have to call people, you know. So you just have to give set platform, set menu to your franchisee. Less complicated business. Less complicated, to be honest. बाहर से complication बहुत आता है. बाहर से complication आती है, to be honest. और बाहर के लिए you have to be there और expertise होनी बहुत ज़रूरी है. Not anyone can come and run a bar successfully. That's what we were talking earlier, right? So I think अभी तो उससे दूर है, but maybe in future, let's see if we can crack that right mix, we can do it. The cloud kitchens के जो margins पे आ रहे थे प्रोफाइल पे 20% EBITDA is you're saying good यार healthy. क्लाउड किचन कौन सी क्लाउड किचन सक्सेसफुल चल रही है पहले तो आप ये मैं बताओ. वही पूछ रहा हूँ, मेरे को यही नहीं समझ हमारा तो आता चलो कि हमारा तो चलो सीढ़िया, हमारा तो चलो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है. हम तो you want people to sit there and those are the people you really care about yes, because they are the ones who driving revenue for you and incremental AOVs also. see, try to understand na, people are coming there not only to like they are coming to a restaurant to have food, right? I understand, but वो अपनी life की like most of the you know big moments, celebrations, किसी का बर्थडे है आप रेस्टोरेंट आ रहा है, ठीक है. किसी की फॉर एग्जांपल एनिवर्सरी है, रेस्टोरेंट आ रहा है. किसी का ब्रेकअप भी हो गया तो वो भी आ रहा है फॉर एग्जांपल गम में पीने, ठीक है, खाने पीने आ रहा है, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, आई मीन you creating a community in a restaurant. लोगों को लगता है कि restaurant is not just a place where you go eat and come back. You go there यार, आप एक डेढ़ घंटा तो बैठते हो ना जाकर. You go there, you see people and you know it is a like proven done thing what I have experienced in One8 Commune flagship store in Aero City. People used to come there. Now similar people over there, they have a big group. और वो किसी को नहीं जानते थे एक दूसरे को, वो वहीं आकर मिले हैं. Now they are wherever they go in any One8 commune all over India, they go together, they travel together, they have this community. उनका young, I mean ठीक है, even we are young, but ठीक है, yeah, younger to us for example, ठीक है, 30-year-old, 28-year-old people, I've seen that. उनके बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, वो अभी कहीं पे भी जाते हैं एक साथ होते हैं. तो यू बिल्डिंग कम्युनिटी. एंड अनदर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, कल्चरल. आप कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, यू नो, सिंगर्स और क्या कहते हैं म्यूजिशियन हमारे यहाँ आगे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, देन दे बिकम बिग इन फ्यूचर व्हाटएवर. बट हम ये प्लेटफॉर्म भी, ये भी मत भूलो आपके हमारे यहाँ अगर सिंगर्स आते हैं, वो यू नो लाइव सिंगिंग करते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, ये एक और वो है, लाइक यू गिविंग जॉब टू सो मेनी पीपल यार. जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो यार. इट्स आई मीन you have the customer there. But word of mouth बहुत strong है. Word of mouth बहुत strong है. और I mean जो भी कोई दिल्ली एनसीआर आता है उसको One8 Commune जरूर जाना है. To be honest, हमारा थोड़ा बॉसमैन भी तो strong है. विराट की खुद की फॉलोइंग क्या है, बट ठीक है, उसके साथ उसकी टीम अच्छा कर रही है. He is proud and you know he's happy about it. मुझे in fact I wanted to come to that यार कि अभी कितने outlets हो गए? One8 के overall in 5 different cities right now. We have 8 outlets. कहाँ पे हैं, किस cities में? Delhi, NCR, Bombay, Pune, Calcutta, Bangalore. 8 और खुल रहे हैं इस साल 2024 में. Pipeline. 8 are more under pipeline, and we coming to Mohali, another one in Bombay, in Noida, another one in Gurgaon, Indore, and soon in Goa as well. विराट के साथ you've known him for many years. Yeah. कैसे रही है partnership? How has that partnership been for One8 Commune and your business? You know, to be honest, what is really good with Virat focuses on his work, his job, that is playing for the nation. That is playing for the nation. Yes. Good, really good cricket. Yes, he talks to me regarding it. वो करता है, कभी कभार बात करता है, डिस्कस करता है, प्रोसेस में कभी कभार इन्वॉल्व भी होता है. फॉर एग्जांपल जुहू जो था उसके घर के बहुत पास था, बहुत पास है, वो जुहू में ही रहता है. तो वहाँ ही हैज़ बिन देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स, उसको बहुत पसंद आया. तो जब वो पूरा प्रोसेस हो रहा था, ही केम देयर,
उसने देखा सब कुछ और वो अपना फीडबैक भी जेन्युइन बड़ा फीडबैक देता है. फूड ट्रायल्स वगैरह वगैरह कुछ करता है. ही वाज देयर, ही वाज ट्राइंग फूड. तो बहुत जेन्युइन. इवन जगह के बारे में भी उसने बोला कि दैट टीम हैज़ डन अ गुड जॉब, अच्छा बनाया है, इट्स गुड. तो वो ऐसा नहीं है क्योंकि सबको पता है आई मीन विराट के बारे में, वो जो करता है फिर वो अच्छे से ही करता है. Yeah. उसका कोई वैसा नहीं होता कि हाँ कर लो, ऐसा नहीं है. बट अभी तो खैर बहुत बिजी है कंट्री के लिए और बिजी रहे, Busy रहे. करता रहे, Good अच्छा for करता us. रहे. प्राउड या Very, very आई वाज देयर फॉर हिज 50th वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी. ऑल दो मैं मैच देखने बहुत कम जाता हूँ. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड तो क्या होता है कि मुझे आई मीन टीवी पे देख के ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं उसके स्पेशली मैच देखने गया था क्योंकि मुझे लग रहा था, या आप मैनिफेस्ट करते हो ना कुछ चीज़ें, मुझे लग रहा था कि शायद वो उस दिन 50th सेंचुरी कर देगा और पाजी का रिकॉर्ड शायद वनडे में तोड़ देगा. तो मैं वहाँ गया और इट वाज अ प्राउड फीलिंग. Zabardast. ज़बरदस्त. And it's also, I think, very moving, especially when you work with him. मुझे भी ऐसा लगता है यार कि how blessed we are at Rage, having a partner like him, having somebody who believes in you, trusts you, in you, and then as you mentioned, he doesn't do anything half-heartedly. No. करना है तो अलग ही लेवल का पैशन है. करना है तो करना है. आप देखो आई मीन ही गिव्स हिज टाइम. अब कैसे इन्वॉल्व होता है, ही आई मीन किस तरह ब्रांड को वो पुश करता है, सारी चीज़ें. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और जिस टाइम हमने ये स्टार्ट करा, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन वी वर बिगनर्स ओनली. Yeah. He believed in you. Now, yeah, he believed in us, and I mean, thanks Chiku. अगर कभी देखेगा तो thank you. but ठीक है, अब दिखाएंगे. दिखाएंगे. He feels good about it. वो बोलता है कि you guys have done a great job. अच्छा करा है, अच्छा करते हो. और I mean खुद के भी उसके inputs बहुत होते हैं. This China man dimsum, एक चाइना मैन डिमसम करके हमारे वो है डिश है, उसमें क्रिकेट के भी कुछ नाम आए हैं उसकी तरफ से, ऐसी बात नहीं है. सो नथिंग इज वो फेलियर रेट जो है इतना हाई है बिकॉज एवरीबडी थिंक्स इट्स ग्लैमराइज्ड, इजी टू डू इट, हेंस लेट्स जस्ट डू इट, बट पैशन नहीं है वो. दूसरा ये भी है ना कि मैथमेटिक्स नहीं समझते लोग खाने की. नहीं, आई मीन यार आप समझो ना, आपका मैंने आपको बताया 30 से 35% तो आपका फूड हो गया, लिकर कॉस्ट हो गया, ये तो है ही ना, ये तो रहेगा ही ना. लोगों को नहीं समझ आता यार. लोगों को आई मीन इट्स गुड दे आर ट्राइंग रेस्टोरेंट बिजनेस और बड़े, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इट्स गुड. बट फर्स्ट टाइम इफ समवन इज ओपनिंग, इट्स माई एडवाइस टू देम, बाकी जिसने जो करना है करे, कि डू इट विद अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हेल्प ले लो. ठीक है, एक बारी कोशिश कर लो. इफ़ यू वुड लर्न फ्रॉम इट एंड यू वुड अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, कि आपको समझ आ रहा है, आप ये काम कर पाओगे, देन यू डू इट बाय गोइंग देयर आउट राइटली बाय योर सेल्फ, ऑल अलोन. आई वुड से कि आई थिंक percentage would be not even 1% success rate if you're going by yourself. What are the trends? अभी क्या दिख रहा है, अभी फ्यूचर क्या है, नॉट जस्ट फॉर One8 Commune बट ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? To be restaurant industry यहाँ से ग्रो ही करेगी with time. That's what I feel. As I told you, restaurant industry बहुत अभी प्री मेच्योर स्टेज पे, मैं आज तो नहीं कहूँगा बट थी, कुछ साल पहले थी. अब acceptance as a family, as normal population, amongst normal population, सबके बीच में acceptance to go out and eat बढ़ती जा रही है. What I feel right now, if I'm not wrong, अगर हम stats निकाले मंथ के अंदर, एटलीस्ट लोग बाहर जो stats आ रहे हैं, जो what I've heard, I think it's like 8 times. That's what I feel. Which was few years back 4 times. So double तो already हो रहा है. और as compared, only in the last 3-4 years it has doubled then. Yeah, 3-4 years. Post-COVID era. I mean in urban areas it's close to I think 15 or 16 times in a month. Wow. Yeah. तो मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि 8 बारी महीने में लोग बाहर जाके खाना खा रहे हैं. That would include fast food, street food, everything, ना? Everything. And see, कैजुअल डाइनिंग कितनी बारी कर रहे होंगे? कैजुअल मैं
टू बी ऑनेस्ट कैजुअल डाइनिंग के भी नंबर समवट सिमिलर ही हैं. दैट्स व्हाट आई फील. इसके आसपास ही ये क्लोज. टू बी ऑनेस्ट अगर आप ये देखो कि सिंगापुर हो गया या चाइना हो गया, वहाँ ज़्यादा है. आई अंडरस्टैंड वहाँ ज़्यादा है. अमेरिका हो गया, ठीक है, वहाँ ज़्यादा है. बट टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा हैं. वहाँ पे क्या है, आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलती कि समवन एट योर होम वेटिंग फॉर यू. एंड और अगर मैंने अपनी मॉम को ये बोल दिया फॉर एग्जांपल कि आज मैं खाना नहीं खा रहा और उन्होंने बना लिया, तो मुझे वो खाना ही पड़ेगा. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो ये भी है. मे बी विद टाइम क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल लेबर कॉस्ट, ओवरऑल हाउस मेड्स और घर में जो भी हेल्प है, वट एवर यू कॉल इट, फॉर एग्जाम्पल, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में भी और ज़्यादा मिलेंगी. ठीक है, दे वुड गेट मोर मनी. ठीक है, सो सूनर और लेटर वो भी एक जो आपको कन्वीनियंस है वो मिलनी बंद हो जाएगी. तो मे बी आप ज़्यादा बाहर खाना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे करके फैमिलीज भी बोलेंगी कि आप बाहर ही खाओ, इट्स बेटर, हमें घर में कुक नहीं करना. बिकॉज आपको घर में कुक भी करना पड़ता है, कुक करने के बाद आपको डिशेस भी करनी पड़ती हैं. तो बहुत चीज़ें होती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं. जो बाहर तो लोग कंपैरिजन तो दे देते हैं कि भाई इंडिया में ये है और बाहर ये नहीं है. बट इंडिया में भी वो कल्चर सूनर और लेटर वो आएगा. आई थिंक बाय 2029 और 30, आई थिंक आई वुड से बाय 30 ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फ्लरिश करेगी. दैट्स व्हाट आई फील. And the One8 Commune will be at the helm of it. I hope One8 Commune would be in each and every city and tier 1, 2, Multiple 3, formats, multiple formats, and not just One8 Commune, Neuma, Pin Code, all the brands, and Abhi, you're opening a party place also, I heard. yeah, wild. क्या है उसका setup scene? सेटअप ये है, देखो खाना तो करना ही पड़ेगा अच्छा, ठीक है, आपको फूड शुड बी देयर. एंड उसका हमारा मेडिटेरेनियन लेबनीज काइंड ऑफ फूड इज देयर एंड सॉर्ट ऑफ मोर इट्स मोर टुवर्ड्स बार साइड, नॉट टुवर्ड्स रेस्टोरेंट. लाइक फूड इज देयर, गुड फूड वुड बी देयर. कब से have you been thinking about this concept? It's been a year working on that. अभी शुरू नहीं हुआ. अभी और 40-45 days. नहीं, the place is under construction. First one we opening in so it's a rooftop thing. It's in Panjabi Bagh rooftop, big roof, and second one planning to open in Gurgaon or Aerocity itself. Thinking about that. Nice. तो अपने लिए जगह बना रहा तू एक. हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे रेस्टोरेंट के बाद जाकर ये बोल सके कि हाँ पार्टी कर रहे थे, काम था वहाँ, कुछ कोई बहाना मिलना चाहिए. बहुत बढ़िया यार वार्तिक, थैंक यू सो मच यार. इट्स बीन अ प्लेजर एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत सारे नोट्स भी बनाए मैंने. कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही आई वुड से इंसाइटफुल हैं, कुछ बेसिक हैं, बट आई थिंक एनीबडी हु इज लुकिंग एट एंड is listening to this, they'll be able to get a very good insight into the industry also, plus also how you've been able to grow. It's very first principle thinking. तूने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो लगे यार कि ये तो बड़ा complicated है. नहीं. You've simplified the basics so much. आपको पता है ना कि हॉस्पिटैलिटी कैसा बिजनेस है. कुछ भी कर दो आप, कुछ कमी तो रह ही जाती है. वो उनके लिए कुछ कमी रह जाती है. तो अगर ठीक है आप उस पर वर्क करते रहो, ठीक है, और कस्टमर अगर आपका बार बार आ रहा है, then you doing something good. कुछ तो आप 1 से 2 खोलना, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8 और 8 से 1 साल में 8 खोलना. That can only happen when you fit very strong product market fit. Very strong loyalty. आपको very strong loyalty और आपको आपका प्रोडक्ट खुद भी समझ आ गया है और अब कस्टमर को भी समझ आ गया है कि ये क्या है, तभी वो हो पाएगा. नहीं तो एंड अगेन टू ग्रो एट दैट स्केल यू नीड गुड टीम ऑल्सो, गुड कोर टीम. उसके बिना नहीं होगा. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑसम यार, थैंक यू भाई. थैंक यू ब्रो. प्लेजर यार, एनी टाइम. आपका हर एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है टू कीप क्रिएटिंग दिस कंटेंट. प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो. जितने लोगों तक ये पहुंचाओगे उतना हम सबको मोटिवेशन मिलेगा टू कीप डूइंग दिस. थैंक यू. कम टू मेजर एजेस.